Hello guys, welcome to my channel Commerce Squad. I'm Himanshi and I welcome you all in my channel. And today we are going to discuss about consumer attitude, how the attitude formed, what is attitude, what is the properties of attitude. So let's just अब start. ये एटीट्यूड किस तरह से आपके बाइंग, क्यों हम इसे कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज अगर फिलिप्स कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है, सो मोहित, क्योंकि उसका फेवरेबल एटीट्यूड है फिलिप्स के लिए, सो वो इजीली ट्रस्ट कर सकता है उसके न्यू प्रोडक्ट को. He can easily buy that product, he can easily try that product, and ready to invest in that, right? So this is how attitude affect our consumer buying process, right? ओके, ये एक्सरसाइज हमने कर ली है. नाउ, एटीट्यूड इज वॉल गैम्बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल फील अबाउट और लाइक डिसलाइक समथिंग, राइट? कि लोग किस तरह से आपके ब्रांड के लिए, किसी भी चीज के लिए आपका किस, क्या फील करते हो आप उसके लिए, whether you like it, dislike it, right? This shows your attitude, right? And here I'm saying something, how people feel about something. So this something can be, it's a very broad term. It can include product, it can include brand, service, a product feature, or we can say advertisement, promotion strategies, right? So we can have attitude towards these things, right? So research into studying the attitude towards something or any object, attitude object, is called attitude research. Why is there need for attitude research? So that the company can know how people, what are the attitude of our target market towards our brand, our product, our services, so that if they have unfavorable attitude, so we can change in our marketing strategy so that we can convert their unfavorable attitude into favorable attitude. Because if the attitude is favorable, only then people can buy your product. There is only then there is a possibility that people can try your product, or they can consider your brand in consideration set while evaluating the alternatives, right? So this is done to understand what consumers want and to increase consumer satisfaction by delivering the same efficiently. It means कि अगर हम एटीट्यूड स्टडी कर रहे हैं, कोई ना कोई तो रीजन है. नैन्सी का सोनी के लिए एटीट्यूड न्यूट्रल था, ठीक है. इट मीन्स कि शायद नैन्सी की जो एक्सपेक्टेशन थी वो कंपनीज फुलफिल नहीं कर पा रही है. शायद जो उसकी, जो फीचर्स वो चाहती है ब्रांड में, वो डिलीवर नहीं हो रहा है. या फिर जिस तरह की कम्युनिकेशन प्रोडक्ट के बारे में नैन्सी को चाहिए, जिस तरह की इंफॉर्मेशन जिससे कि वो इजीली इवेल्युएट कर सके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को, वो उसके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है. सो जब हमें ये सारी चीजें पता होगी, तभी तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज कर सकते हैं, तभी हम अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक है. So it is to understand the pulse of the market. Attitude show what consumers want reflected by what they think. ठीक है. So attitude means कि हम कैसा सोचते, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं उस ब्रांड के बारे में, उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में, जो ये शो करता है कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है. Now let's just quickly move on to the definition, right? So attitude is our learned predisposition to respond in a consistently favorable or unfavorable manner with respect to given stimulus. Given stimulus क्या हो सकती है? Stimulus means जो चीज आपके, जो
कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू, जो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल प्रमोशन स्ट्रैटेजीज जो मार्केटर करते हैं वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ मार्केट में लाया गया है, आपकी आपकी जो अनफुलफिल्ड नीड थी उसको फुलफिल करने के लिए वो प्रोडक्ट लेके आया है, तो क्या है, वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा, वो आपके एटीट्यूड को अफेक्ट करेगा। ठीक है। सो एटीट्यूड क्या है, एक लर्न प्री डिस्पोजिशन है। इट मीन्स कि एटीट्यूड ऐसा नहीं है ऐसे ही फॉर्म हो जाता है, एटीट्यूड को हम लर्न करते हैं। किसी भी चीज के लिए हमारा एटीट्यूड वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पर। ठीक है। So, attitude is an expression of inner feelings that reflect whether a person is favorably or unfavorably disposed to some object. It means कि attitude की एक inner feeling है जो ये reflect करते हैं कि आप किसी भी object के लिए favorable behave करते हो या फिर unfavorable. It's a person's relatively consistent evaluation, feelings, or a tendency towards an object. Right? So, like learned predisposition की हम बात करें, so attitude is there because consciously, unconsciously we have learned certain things about the attitude object. हम attitude object के बारे में चीजों को learn करते हैं, like हम अलग अलग वेब, जब भी हम कोई भी हमें चीज परचेज करनी होती है तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है। सो वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है, वो आपके एक एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं। जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उससे आप ये जज करते हो कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है। जो जिस तरह की एड्स आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, उसको बिल्ड करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लर्नड इट ओवर द इयर्स दैट मैगी इज अ 2 मिनट स्नैक। हम मैगी को 2 मिनट स्नैक मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ये चीज लर्न किया, ये हमारा एटीट्यूड है मैगी के लिए, इट्स अ 2 मिनट स्नैक, दिस इज वी लर्न। राइट, ये चीज हमें एड्स में कंसिस्टेंटली दिखाई गई है। ठीक है। Next is consistency. We know from experience, media, and otherwise that thumbs up is a strong and this is a consistent thinking. So thumbs up जो है एक strong drink है। ये हमने किस, ये जो एटीट्यूड है thumbs up के लिए हमने कैसे बिल्ड किया? क्योंकि वो जो मैसेज है कि स्ट्रॉन्ग थम्स अप जो है एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, ये मैसेज हमें कंसिस्टेंटली दिखाया गया है। ठीक है, ये कंसिस्टेंटली हमने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है। एटीट्यूड किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या तो आप उसके लिए फेवरेबल बिहेव करोगे या तो अनफेवरेबल या समटाइम न्यूट्रल। ठीक है। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है? यस। ओके, नेक्स्ट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस an object towards which the attitude is measured। कि जिस ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स आपका एटीट्यूड मेजर किया जा रहा है, लाइक हमने थम्स अप की बात की, हमने मैगी की बात की, दैट इज ट्यूमलेस। ठीक है। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट रेफर्स टू द concept against which attitude is seen, tested and analyzed। अभिषेक, you are late। Okay, so I'm saying that attitude object, it refers to the concept against which the attitude is seen, tested and analyzed। किस ऑब्जेक्ट के लिए आप एटीट्यूड देख रहे हो, किसके लिए आप एटीट्यूड टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कौन सा वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दैट इज आवर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। लाइक अगर हमें we are interested in knowing the attitude towards electrical good industry, then Videocon, Sony, Haier, Philips, these would be attitude object, right?
Next is belief. So it is the psychological association between product, brand, outlets, actions, etc., and an attribute or feature of such. ठीक है. बिलीफ का मतलब क्या है कि आपका उस ब्रांड के साथ, आउटलेट, प्रोडक्ट के साथ क्या एसोसिएशन, क्या साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसके उसके फीचर्स के रिगार्डिंग आपका क्या बिलीफ है. ठीक है. सो बिलीफ मीन्स स्टेटमेंट. ठीक है. जैसे कि मोहित ने बताया था दैट फिलिप्स इज अ ट्रस्टेबल ब्रांड. ठीक है. गुड क्वालिटी उनकी होती है. दिस इज व्हाट बिलीफ. ठीक है. एंड दिस बिलीफ इन्फर दैट मोहित्स एटीट्यूड इज फेवरेबल. राइट. सो बिलीफ आर कॉग्नेटिव. जैसे कि मोहित ने बताया ना कि उसने आई थिंक किसी प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया था, तो वो क्या है, उसकी नॉलेज में है, उसने वो एक्सपीरियंस किया है. राइट. सो कॉग्नेटिव इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन नॉलेज, एक्सपीरियंस, फेथ, ओपिनियन, परसेप्शन. हो सकता है ये मोहित का सिर्फ परसेप्शन ही हो, उसे लगता है कि फिलिप्स एक अच्छा ब्रांड है. लेकिन अगर मान लो अभिषेक से हमने बात की, अक्षय से हमने बात की, सो उसका लगता है कि नहीं, ये फिलिप्स सही ब्रांड नहीं है, उससे अच्छा सोनी है इलेक्ट्रिक गुड्स के मामले में. ठीक है. सो बिलीफ कैन बी बेस्ड ऑन परसेप्शन एज वेल. राइट. So the stronger the association of the feature or attribute with the product, brand, outlet or action, the stronger the consumer belief. जो फीचर वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो उसके एट्रीब्यूट है, उसके साथ आपका जितना स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन होगा. स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन मींस कि वो एट्रीब्यूट, वो फीचर मेरे लिए क्या वैल्यू रखता है. हो सकता है वो मेरे लिए, जो मान लो फिलिप्स की गारंटी जो है, फिलिप्स के प्रोडक्ट की गारंटी ज्यादा ईयर्स की, मान लो 10 ईयर्स की है, लेकिन अदर ब्रांड्स में 2-3 ईयर्स की गारंटी दी हुई है. लेकिन मेरे लिए गारंटी सबसे ज्यादा मायने रखती है. सो उस फीचर के अकॉर्डिंग मेरा जो एसोसिएशन है फिलिप्स के साथ वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि मेरे लिए ये जो एट्रीब्यूट है, ये सबसे ज्यादा मेन एट्रीब्यूट है. ठीक है. क्योंकि मेरा एसोसिएशन उस फीचर के साथ स्ट्रांग है, दैट्स वाई मेरा जो बिलीफ होगा वो भी स्ट्रांग होगा. क्योंकि मेरे लिए तो सबसे मेजर जो फीचर होना चाहिए ब्रांड में, जो जो एट्रीब्यूट उसे प्रोवाइड कराना चाहिए, वो है गारंटी. वो मुझे फिलिप्स दे रहा है, सो मेरा बिलीव भी उसके लिए स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग ओपिनियन होगा मेरा. स्ट्रांग स्ट्रांग बिलीव, स्ट्रांग ओपिनियन होगा, सो मेरा एटीट्यूड भी फेवरेबल होगा. ठीक है. सो देयरफॉर अ बिलीव इज अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन होल्ड अबाउट समथिंग. जैसे कि मोहित की बात करें, नेंस that is their belief, and belief can be favorable or unfavorable. ठीक है. या तो आप उस ब्रांड के बारे में अच्छा फील करते हो या नहीं करते हो. ठीक है. सो एटीट्यूड्स आर मेड अप ऑफ बिलीव्स दैट अ पर्सन accumulate over his lifetime. सो एटीट्यूड जो है वो बिलीव से फॉर्म होता है, बिलीव से बनता है. हम क्या बिलीव है हमारा. ठीक है. और ये जो बिलीफ है ये भी ऐसे नहीं बनता, इसके लिए भी अब अगर किसी ने कहा है कि वो जो ब्रांड है वो ट्रस्टवर्दी है, उसके उसके सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, तो उसने एक बार में ही तो ये डिसाइड नहीं कर लिया, ये ओपिनियन ऐसे ही तो फॉर्म नहीं हुआ है. अगर आप मानो कि आप कोई कोई भी एक कंपनी एक्स आती है, न्यू कंपनी आती है, वो अपने ब्रांड्स लॉन्च करती है, तो आप उसके एक ही प्रोडक्ट को यूज करके थोड़ी जज कर लोगे कि नहीं इसके तो सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं. आप ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस करोगे उसके ब्रांड्स कैसे हैं, किस तरह के सर्विसेज वो दे रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव ब्रांड से क्या कमी है, उनमें क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या उनके एडवांटेज हैं, क्या वो एज अ कंज्यूमर हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग हमारा बिलीफ फॉर्म होता है. राइट.
सो बट ओनली फ्यू ऑफ द बिलीफ एक्चुअली वर्क टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड. ठीक है. यहाँ पर बोला गया है कि कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं जो कि हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं. बिलीफ विच वर्क्स आर साइलेंट बिलीफ. जो बिलीफ वर्क करते हैं, जो हमारी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट आर साइलेंट बिलीफ. नाउ with this discussion about belief, we can say that attitude is a person's silent belief about whether the outcome of his action will be positive or negative. सो मैं ये कह सकती हूँ कि जो वो बिलीफ है वो ये शो करता है कि जो आउटकम होगा उसके एक्शन से वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. इट मीन्स अगर मोहित के एग्जाम्पल की बात करते हैं. सो मोहित का जो बिलीफ था फिलिप्स के बारे में, उसके अकॉर्डिंग मैं ये जज कर सकती हूँ कि मोहित वो ये परसीव करता है कि जो अगर वो कोई भी फिलिप्स का न्यू न्यू प्रोडक्ट भी इवन ट्राई करता है, सो उसका आउटकम वो पॉजिटिव परसीव करता है. ठीक है. क्योंकि वो आउटकम पॉजिटिव परसीव कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, इसके सारे जितने प्रोडक्ट आते हैं वो अच्छे ही आते हैं. उसने ओवर द इयर्स यही एक्सपीरियंस किया है. ठीक है. सो एटीट्यूड क्या है, बेसिकली आउटकम के बारे में. आप जो आपके एक्शन से जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. अगर पॉजिटिव है तो हमारा एटीट्यूड भी फेवरेबल होगा उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये मैं प्रोडक्ट बाय कर रही हूँ तो इससे मुझे ये एडवांटेज होगा, मेरी ये नीड फुलफिल होगी. जब मुझे पता है मेरी नीड फुलफिल हो रही है तो ऑब्वियसली मेरा फेवरेबल एटीट्यूड होगा उसके लिए. मैंने कैसे जज किया, आउटकम के बेसिस पे. ठीक है. नाउ next is belief strength. So beliefs are rated for the probability that engaging in the behavior will produce believed outcome. सो मैं ये कह रही हूँ कि बिलीफ स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कोई भी मेरा जो बिलीफ है, ठीक है, जो मेरे को ये बता रहा है कि मेरा जो आउटकम होगा वो किस तरह का होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. सो अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा बिलीफ ये है कि मेरा जो आउटकम है वो पॉजिटिव होगा, सो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉजिटिव होगा. ठीक है. सो दैट इज माई बिलीफ स्ट्रेंथ. ठीक है. कि मुझे कितना, अगर ये मेरी ये प्रोडक्ट मेरी नीड को सेटिस्फाई कर देगा तो कितनी हद तक वो सेटिस्फाई कर देगा. ठीक है. दैट इज बिलीफ स्ट्रेंथ. ओके मैम. ओके, आगे करें. The first property of attitude is it is a psychological process. Attitude are not visible, they are reflected by actions, responses, survey of consumer. ठीक है. सो एटीट्यूड का एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारे माइंड में होती है वो, आप उसे देख नहीं सकते, इट्स नॉट विजिबल, राइट. लेकिन उस एटीट्यूड, वो एटीट्यूड आपका आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है, आपके रिस्पॉन्स में. लाइक हम सर्वे करते हैं जब, ठीक है, सो सर्वे जब हम करते हैं तो वो क्या है, कंज्यूमर के एटीट्यूड को दिखाता है. ठीक है, कि कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है उसके लिए, वो रिफ्लेक्ट होता है आपके बिहेवियर एक्शन में. ये एटीट्यूड बिहेवियर और एक्शन नहीं होते, ठीक है, बट वो रिफ्लेक्ट होता है उनमें. ये क्लैरिटी रखना आप. एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट आर इन्फर्ड बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, सर्वे, हिडन कैमरास, एनीथिंग, राइट. अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्रांड के लिए क्या एटीट्यूड है कंज्यूमर का, मुझे ये जज करना है. ठीक है. मैं किस तरह से कर सकती हूँ, कंज्यूमर रिसर्च हम करते हैं इसके लिए. बहुत सारे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, लाइक आस्किंग क्वेश्चंस. हम कंज्यूमर के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं, उसमें हम कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं जिनसे ये इन्फर हो कि उनका क्या एटीट्यूड है. सर्वे कर सकते हैं हम, सर्वे क्वेश्चनियर के थ्रू. हिडन कैमरास सो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आएगा. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, मतलब फील्ड में होती है ये रिसर्च, रियल एनवायरनमेंट में होती है. लाइक एक स्टोर है, आपने वहां पर कैमरास, हिडन कैमरास लगा दिए,
कस्टमर आ रहे हैं, वहां पर आपका ब्रांड है और उससे रिलेटेड ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स हैं। ठीक है, आप उस कैमरे से ये देख रहे हो कि कंज्यूमर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आपके ब्रांड के लिए। ठीक है, अगर आपने उसने उस उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से आपका प्रोडक्ट चूज किया, इट मींस ही हैज फेवरेबल एटीट्यूड। अगर उसने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट लिया, इट मींस अनफेवरेबल एटीट्यूड है। ये हम मेथड यूज कर सकते हैं। या फिर ऑब्जर्विंग कस्टमर इन स्टोर्स, या फिर आप स्टोर्स में जाके कंज्यूमर्स को ऑब्जर्व करो, देखो उनका क्या बिहेवियर है। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ द परचेज, इट मीन्स कि सपोज कोई कंज्यूमर, अगर आपके लॉयल कंज्यूमर हैं जो वो आपके प्रोडक्ट को कंसिस्टेंटली परचेज कर रहे हैं, ठीक है, स्विच नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स उनका एटीट्यूड आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके ब्रांड के लिए फेवरेबल है, कंसिस्टेंटली फेवरेबल है। और कंसिस्टेंटली फेवरेबल होता नहीं है एटीट्यूड, हमें करना पड़ता है एज अ मार्केटर, ये हमारा काम है। ठीक है, so attitude is based on the perception one carries toward the stimulus because of experience, information, publicity, and other peers pressure. Two persons may have different attitude about the same object. Now, attitude is based on perception. Perception is how we perceive the thing, how we see the world around us. किसी भी चीज के लिए आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, ठीक है, दैट इज योर परसेप्शन। सो एटीट्यूड परसेप्शन के ऊपर भी बेस्ड होता है। हमने दो पर्सन है, ठीक है, हमने उनको सेम अपने ब्रांड की एडवर्टीजमेंट दिखाई, एक पर्सन का एटीट्यूड फेवरेबल आया, दूसरे का अनफेवरेबल आया। क्यों? सेम स्टिमुलीज हमने प्रोवाइड करी उन्हें, फिर क्यों डिफरेंस आया है? डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ देयर परसेप्शन। परसेप्शन से कैसे डिफरेंस आ गया भाई? हो सकता है जो जिसका जिस पर्सन का एटीट्यूड परसेप्शन, जिस पर्सन का जो एटीट्यूड है फेवरेबल है, फेवरेबल कैसे हुआ होगा उस वो किस मतलब आपके जो प्रोडक्ट को उसने फेवरेबली परसीव किया है, जो उसे इंफॉर्मेशंस मिली, जो भी एक्सटर्नल इंटरनल उसने सर्च किया, जो भी स्ट्यूमरीज उसे प्रोवाइड कराई गई, उसके बेसिस पे उसका परसेप्शन इस तरह का फॉर्म हुआ, क्योंकि उसको सारी इंफॉर्मेशन पॉजिटिव मिली, तो उसका परसेप्शन भी पॉजिटिव फॉर्म हुआ, देन एटीट्यूड भी पॉजिटिव। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दूसरा पर्सन था, सपोज कि वो जो प्रोडक्ट जिसकी हमने एडवर्टीजमेंट दिखाई ना, उसने उसके बारे में अपने फ्रेंड से पहले इंफॉर्मेशन ले रखी थी, तो फ्रेंड यूज कर रहा था उस प्रोडक्ट को, उसने उससे पूछा, तो उसने बोला कि नहीं ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसे कि हम लोग करते हैं अपने, कोई भी हमारा फ्रेंड नया प्रोडक्ट लेके आता है किसी भी नए ब्रांड का, ठीक है, हम पहले उसका ओपिनियन लेते हैं। अगर हम सोचते हैं कि वही प्रोडक्ट बाय करने की, सबसे पहले हम अपने जिन भी हमारे रिलेशन में, जिन भी हमारे फ्रेंड्स फैमिली में जिन्होंने भी वो प्रोडक्ट बाय किया, सबसे पहले हम उनका रिव्यू लेते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या फीचर्स हैं, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जिस पर्पस के लिए लिया था वो पर्पसफुल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है कि उसने अपने फ्रेंड से जब बात की हो तो उसने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी हो, इस वजह से उसका परसेप्शन नेगेटिव है, उसकी वजह से एटीट्यूड भी नेगेटिव है। तो आप उसको फिर कितनी भी अच्छी ऐड दिखा लो, आप कितना भी कुछ कर लो, आप उसके एटीट्यूड को चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एटीट्यूड इज नॉट सेम एज बिहेवियर। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा अगर एटीट्यूड इसके लिए फेवरेबल है तो मैं उसे बाय करूंगी ही, वो मेरे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा ही। मेरा मर्सिडीज के लिए एटीट्यूड फेवरेबल है, बट मैं उसे परचेज तो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आई कांट अफोर्ड दैट। ठीक है, सो एटीट्यूड फेवरेबल है, लेकिन बिहेवियर में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इट इज
क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, ये बेसिकली ज्यादातर उन केसेस में होता है जहां पर प्रोडक्ट का प्राइस काफी हाई होता है। ठीक है, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि अगर मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव ही है प्रोडक्ट के लिए तो मैं, सो कंज्यूमर डेफिनेटली बाय करेगा उस प्रोडक्ट को। ठीक है, सो इन केस अगर कंज्यूमर का एटीट्यूड फेवरेबल है और इवन तब भी उसका बिहेवियर में वो चीज कन्वर्ट नहीं हो रही है, सो एज अ मार्केटर मुझे ये देखना है कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या स्ट्रैटेजी मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ सो दैट कंज्यूमर बाय करे मेरे प्रोडक्ट को। क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड में मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये देखना है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, क्यों वो परचेज नहीं कर रहा है, क्या रीजन है, मुझे उस रीजन को पता करना है। ठीक है, नाउ attitude as learned predisposition have a motivational quality। ठीक है, एटीट्यूड क्या है, एक मोटिवेशन की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि ये लर्न प्रीडिस्पोजिशन है, एटीट्यूड हेलो आप लर्न। हेलो, या मैम। मैंने कहा। विवेक का ज्वाइन नहीं हो रहा कब से, वो कब से अरे वो यार, टेंशन ले रहा है कि भाई 40 मिनट हो गए मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा। अरे यार कहाँ है विवेक? मैम हो ही नहीं रहा उसका, मैं कब से उसी का ट्राई विवेक करवा एक रहा हूँ, हो ही मिनट, नहीं रहा। विवेक उसको ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है, उसके नेट में दिक्कत है क्या? नहीं मैम, उसका फेल्ड आ रहा है, बार बार कह रहा भाई फेल्ड आ रहा है। यार अब तो क्लास खत्म होने वाली है, क्लास के बाद फिर मैं उससे बात करती हूँ, उससे बोलना कि मेरे को एक बार मैसेज कर ले। ठीक है, ओके ठीक है मैम, निशा। ठीक मैम, भेजना। ओके, ओके मैम, थैंक्स। वेलकम। या सो एटीट्यूड एज अ लर्न प्रीडिस्पोजिशन हैव अ मोटिवेशनल क्वालिटी। कि जो चीजें हमने लर्न की, जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, वो एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह भी वर्क करती है। ठीक है, लाइक आज हम मोहित के एग्जांपल ले रहे हैं, सॉरी क्योंकि उसी ने रिप्लाई किया था। सो मोहित का जो एटीट्यूड है फिलिप्स के लिए, वो क्या है, एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह भी वर्क करता है उसके बाइंग के लिए। ठीक है, नाउ एटीट्यूड पुट people in a frame of mind towards liking disliking things। how, एग्जांपल लेते हैं। if attitude is that eating healthy food is important, the perception would be that vegetables are healthy alternative to snack and fast food। ठीक है, कि अगर हमारा एटीट्यूड है कि हमें हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, वो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो परसेप्शन क्या है कि वेजिटेबल जो है वो हेल्दी फूड है, लेकिन जो फास्ट फूड है वो एक अनहेल्दी ऑल्टरनेटिव है। सो हमारी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग आप देख रहे हो कि हम वेजिटेबल्स को लाइक कर रहे हैं, स्नैक्स स्नैक्स और फास्ट फूड को डिसलाइक कर रहे हैं, किस बेसिस पे? हमारे एटीट्यूड के बेसिस पे। सो एटीट्यूड की वजह से हम चीजों को फ्रेम कर पा रहे हैं, एक लाइकिंग डिसलाइकिंग के उसमें बाइफिकेट कर पा रहे हैं हम उसे। ठीक है, नाउ एटीट्यूड आर डिफिकल्ट टू चेंज। या देखो एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड डेवलप्ड एज अ चिल्ड्रन ऑफ्टन इन्फ्लुएंस परचेज एज एडल्ट। एटीट्यूड को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। राइट स्ट्रैटेजीज अगर हम अडॉप्ट करते हैं सो वी कैन चेंज द एटीट्यूड। एटीट्यूड आर अ फाइनल आउटकम ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यस, अगर मेरा फेवरेबल एटीट्यूड फॉर्म हुआ है, ऐसे थोड़ी हुआ होगा, पूरी एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है और उसका फाइनल आउटकम होता है एटीट्यूड। किसी भी चीज के लिए आपका नेगेटिव अगर एटीट्यूड भी फॉर्म हुआ है, सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है, वो प्रोसेस की है आपके माइंड में, मतलब ये सारे ना माइंड में होती हैं ये चीजें, हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरह से हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग है और ये, ठीक है। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लाइक आप किसी अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो किसी भी ब्रांड के बारे में, देन आप जज कर सकते हो कि उसका एटीट्यूड क्या है। आप रीजन पता कर सकते हो कि किस बेसिस पे वो बोल रहे हैं। ठीक है, yeah, so attitude and attitude change is a function of consumer personality and lifestyle change। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं जंक फूड की बहुत बड़ी फैन थी, मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद थे मुझे, लेकिन अब तो मैंने काफी अवॉइड कर दिया है।
क्यों? लाइफस्टाइल की वजह से। उस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से, क्योंकि अब मैंने हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दिया है, सो मेरा जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया। अब मेरा जंक फूड, पिज्जा, मोमोज, इन सब के लिए क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है। लाइफस्टाइल चेंज की वजह से एटीट्यूड चेंज हो गया। पहले फेवरेबल था, बहुत पसंद है भाई, बहुत लाओ ठीक है, लेकिन अब क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हुआ तो हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो गया। ठीक है, हमारी पर्सनालिटी की वजह से भी एटीट्यूड हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? प्रॉपर्टीज क्लियर है सभी को? बताओ मेरे को। Okay, thank you everyone for joining this session. I hope that this session is very helpful for you. Do subscribe and share. Thank you.